सरांचं किती वेळा झालं. Good afternoon to one and all. Myself Shraddha Rathi, Department of Commerce, GS Science, Arts and Commerce College, Khamgaon, and the organizing committee member of this webinar. Good afternoon all of you. Myself Dr. Rohini Rajendra Dharamkar, Department of Chemistry, GS College, Khamgaon. Welcome you all in inauguration function, international level online training and exhibition on Best Out of West, organized by Women's Empowerment and Entrepreneurship Development Cell, GS College Khamgaon in collaboration with निसर्ग संस्था खामगांव. हम हर साल हमारे श्रद्धा स्थान भाऊ साहेब जी बोबड़े 18 to 24 सितंबर स्मृति सप्ताह के रूप में मनाते हैं. हर साल महिला सक्षमीकरण और महिला उद्योजकता विकास समिति महिलाओं के विकास के लिए और उन्हें स्वयंभू बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और विभिन्न कार्यक्रम लेने के लिए भी हमेशा तत्पर रहती है. वैसे ही इस साल हमने इस स्मृति सप्ताह में इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन ऑन बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का आयोजन किया है. इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ. हमें खुशी है इस कार्यक्रम का अध्यक्ष स्थान विभूषित करने जा रहे हैं माननीय डॉक्टर सुभाष जी बोबड़े उर्फ दादा साहेब बोबड़े सर, अध्यक्ष विदर्भ शिक्षण प्रसारक मंडल खामगांव. हमारा सौभाग्य है कि हमें उद्घाटक के रूप में माननीय कुलपति डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर सर, वाइस चांसलर संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती हमें प्राप्त हुए हैं. इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे एक्स स्टूडेंट जो महिला उद्योजकता की मिसाल है वो है माननीय हर्षल जगदाळे मैडम फ्रॉम यूएसए, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अब्रॉड जाकर भी अपने कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं. एंड मोनिका उमक मैडम, कन्वेनर स्वयं सिद्धा उद्योजकता विकास अभियान अमरावती, हमें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की कला का प्रदर्शन, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण निसर्ग संस्था की अध्यक्षा माननीय नीताताई बोबड़े मैडम से प्राप्त होने जा रहा है. और ये साल नीता मैम, ये ऐसे ही नीता मैडम हर साल 2002 से हमें कार्यरत है वुमेन्स एम्पावरमेंट सेल में. हर साल वो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हम लोगों को सिखाते हैं या महिलाओं के लिए सिखाते हैं. इस कला का आनंद लेने हमारे साथ जुड़ी है आप सभी सम्माननीय सहभागी. वेलकम यू ऑल. So here I request our respected principal Dr. Talwankar sir for welcome speech. Good afternoon, everybody. First of all, I pay my homage to our source of inspiration, late Bhau Saheb Bobde and late Baba Saheb Bobde. I welcome the chairperson of today's function, Dr. Subhash Ji Bobde, and inaugurator, Honorable Vice Chancellor Sant Gadge Baba Amravati University Amravati, Dr. Muralidharji Chandekar sir. At the same time, I am pleased to welcome on this virtual platform our chief guest of today's function, Harshal Jagdale from USA, and Professor Monica Umak from Shivaji Arts and Commerce College Amravati and convener of Swayam Siddha Udyojakta Vikas Abhiyan Amravati.
I welcome you all in this something different type of program. It is nothing but the exhibition and the virtual training on best out of waste. I am pleased to say that our patron Nitatai Bobde, from last 25 years, he is taking efforts to reach this art to make best from the waste to each and every person, girls, ladies, boys, gents, and who wants to build their career, they also take benefit of this art. Here, I must say, I must share my opinion that after this virtual training, you can use this art to make your career. Not only that, the boys and girls and who are now the what we can say, who are in juvenile stage, they can use this innovative art to build their career and also to start up for their new business. So this exhibition of such a different things which are made from the different products or different things which are actually we throw as a waste, but we can make very good things, very fantastic things from this, and you will get the online virtual training also, and you can make this useful, you can utilize it for your future. At the last, I again welcome all the participants, all the viewers, and one more, the inaugurator, because this is very fortunate for us to for this workshop and virtual training and exhibition, that our honorable vice chancellor, he has given his precious time over his busy schedule. So I again, on behalf of the GS College Khamgaon and Women Empowerment Cell of our college, I am very much thankful to our vice chancellor, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request respected Dr. Pratibha Tauri ma'am, convener of Women's Empowerment and Entrepreneurship Development Cell and Head of Department of Political Science, GS College Khamgaon, for introductory speech of today's program. गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारे महाविद्यालय के विदर्भ शिक्षण प्रसारक मंडल खामगांव के भूतपूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद राज्यसभा खामगांव रत्न श्रद्धेय भाऊसाहेब जी उर्फ शंकररावजी बोबडे, इनके स्मृति में हमारे महाविद्यालय में हर साल 18 से 24 सितंबर के दरमियान स्मृति सप्ताह का आयोजन किया जाता है। मैं सर्वप्रथम श्रद्धेय भाऊ साहिब जी को अभिवादन करती हूँ। आप सभी को आदरपूर्वक नमस्कार करती हूँ। ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ टुडेज प्रोग्राम डॉक्टर सुभाष रावजी बोबडे सर, ऑनरेबल इनॉगरेटर ऑफ द इवेंट डॉक्टर मुरलीधर जी चांदेकर सर, वाइस चांसलर of SDBAU University, Amravati. The most distinguished chief guest, Honorable Harshal Jagdale, Honorable Professor Monica Umak, respectable mentor and trainer, Honorable Nitatai Bobde, Honorable Principal of GS College Khamgaon, Dr. Dhananjay Talwankar sir, and all the respectable participants. The COVID-19 pandemic has led to several restrictions, but turning the problem into an opportunity, we decided to make most of the online platform. We decided to organize the event
international level. Our participants are not entirely from academia, so the event will be bilingual. मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जिनके पावन स्मृति में इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, श्रद्धेय भाऊ साहिब जी, इनके अध्यक्ष काल में हमारे महाविद्यालय में महिला सक्षमीकरण एवं महिला उद्योजकता सेल की नींव रखी गई। आज उन्हीं के आशीर्वाद से तथा व्यवस्थापन एवं प्राचार्य के मार्गदर्शन में महिला सक्षमीकरण सेल विगत 20 साल से महिला सक्षमीकरण के लिए, स्त्री पुरुष समानता के लिए, महिला उद्योजकता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न नवीनतम उपक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं। आज का जो इवेंट हमने यहाँ पे लिया है, हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे लिया है, कचरे से कला और कला से उद्योग, आर्ट फ्रॉम वेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम आर्ट, यह इसी नवीनतम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के अमरावती के कुलपति आदरणीय मुरलीधर जी चांदेकर सर ने महिला सेल के उपक्रमों को इसके पूर्व विजिट दी है। प्लास्टिक कैरी बैग से बने बुके उद्योग का शुभारंभ आपके हाथों से हुआ है। आपके शुभ हाथों इस उपक्रम का शुभारंभ हुआ है। आज जब हमारा यह प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने जा रहा है, तब आदरणीय कुलपति के करकमलों द्वारा इसका शुभारंभ होना यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। We organize training and exhibition of best out of waste in every year since 2000. We got inspiration to do this project from Nita Tai. When I saw Nita Tai's exhibition in 2000, I was surprised to see beautiful artifacts made from various waste, like plant waste such as dry vegetable, fruit, seeds, etc. Also man-made waste like building construction waste, furniture waste, plastic carry bags, bottle waste. This amazing artifacts is very attractive and innovative and need near about zero investment. प्लांट वेस्ट से नित नए बनने वाले कलाकृति को नीता ताई निसर्गाचं देणं कहती है। हिंदी में हम इसे कुदरत की देन या इंग्लिश में हम नेचर गिफ्ट्स इसे कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह पंक्ति नीता ताई के लिए सटीक साबित होती है। हम नीता ताई के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जहां किसी की सोच भी नहीं पहुंच सकती, वहां नीता ताई की खोज पहुंच जाती है। नीता ताई की शोध दृष्टि कभी पेड़ के तने से, तो कभी पेड़ के जड़ों से, तो कभी पेड़ के टहनियों से, तो कभी पेड़ के पत्तों से फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट, इनके छिलकों से कुदरत का भांडार ढूंढ लेती है और फिर भर देती है अपने कला और हुनर का रंग उसमें, और फिर सृजन हो जाता है नवीनतम गहनों का और नवीनतम कलाकृतियों का। यह बात हुई कुदरत की देन की। मनुष्य निर्मित कूड़े से पिताई ने इसी तरह की अनोखी ऐसी कलाकृतियों को जन्म दिया है। ताई की यह कला हमारे महाविद्यालय के महिला सेल के द्वारा हम महाविद्यालय में, शहर में, आजू बाजू के देहातों में इसके प्रदर्शन और प्रशिक्षण के कार्यक्रम हम लेते रहते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में हमारी महाविद्यालय की छात्राएं तथा महिलाएं ने इन उपक्रम का लाभ लिया है
और उद्योग में स्थापित हुई है। आज की हमारी दोनों अतिथि प्रातिनिधिक रूप में हमने हमारी भूतपूर्व छात्राएं रही है और प्रातिनिधिक रूप में हमने उन्हें अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है। हमारी छात्रा मोनिका उमक सोनटक्के, जिस वर्ष हमने इस उपक्रम का शुरुआत की थी, उस बैच की मोनिका, इसने यहाँ से महिला उद्योजकता की प्रेरणा ली और यह ऊर्जा उसके मन में महिला उद्योजकता के लिए कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करते रही। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोनिका ने महाराष्ट्र भर में 35 से 36 महिलाओं की इंडस्ट्रीज को स्थापित किया है। हमारी दूसरी अतिथि हर्षल जगदाळे, हमारी महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्रा, जिसने यहाँ पे महाविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने मन में उद्योजकता की जोत संजोई हुई है। इसके रंग खुद के जीवन में और अपने विदेशी साथियों के बीच में बिखेर रही है। हमें गर्व है कि हमारी महाविद्यालय की छात्राएं देश विदेश में इस कलाओं को लेकर जा रही है। आज यह जो उपक्रम है, हमने 2 सत्रों में इसका आयोजन किया है। उद्घाटन सत्र और उसके बाद में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की प्रदर्शनी तथा ट्रेनिंग का प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। तो आइए, वी वेलकम यू ऑल टू एंजॉय this innovative program. Thank you very much. Thank you, madam. Now I request our Honorable Vice Chancellor Dr. Chandekar sir for inaugural speech and request him international level online training and exhibition on Best Out of West webinar has been inaugurated. नमस्कार. गोसे महाविद्यालय खामगाव चे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर धनंजय तळवणकर, उपस्थित सर्व व्यवस्थापन मंडळाचे पदाधिकारी, सन्माननीय प्राध्यापक वर्ग आणि प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज या ठिकाणी मी स्वर्गीय शंकररावजी बोबडे स्मृती सप्ताहाच्या निमित्ताने कचऱ्यातून कलाकृती या प्रशिक्षणाचा आयोजन या महाविद्यालयाने जे केलेलं आहे त्या निमित्ताने आपल्यासमोर आहे. मला या विषयाच्या संदर्भात त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून हे महाविद्यालय कचऱ्यातून कला या प्रकारच्या प्रशिक्षणाचं आयोजन करते आहे. मला जेव्हा या विषयाची माहिती मिळाली तेव्हा मी सहज विचार करत होतो की शैक्षणिक संस्थांचं योगदान शिक्षण क्षेत्रामध्ये तर असतंच आणि त्याबद्दल आम्ही विचार करतो. सुरुवातीला 4 विद्यार्थी, मग 4000 झाले, इतके पदवीधारक बाहेर गेले. ते सगळं जे आउटपुट आहे ते संख्यात्मकतेच्या आधारावर असतं. त्यामध्ये गुणवत्तेचा सहभाग असतो, पण हे जे आम्ही काही आकडेवारी करतो ती संख्यात्मक आहे. पदवीधारक झाले. मला असं वाटलं गेल्या 25 वर्षापासून कचऱ्यातून कला बनवण्याचं प्रशिक्षण जे हे महाविद्यालय देत आहे, शंकरराव बोबडेंच्या स्मृतीनिमित्त, यातून किती विद्यार्थी या मानसिकतेतून गेले असेल की जे आपल्याकडे वेस्ट आहे ते बेस्ट आहे. मला असं वाटतं की एक नवनिर्मितीची मानसिकता या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून हे महाविद्यालय गेल्या 25 वर्षापासून करत आलं. हे खऱ्या अर्थाने अभिनंदनीय आहे. कारण शिक्षणाचा मुळात उद्देशच तो आहे की आपल्याला घडवणं, मग तो माणूस असेल,
वेगवेगळ्या मानसिकता त्याची घडवणं आणि यातून एक माणसाचं निर्माण करणं हे शिक्षणाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. केवळ औपचारिक शिक्षणामध्ये राहून सिलॅबस आणि परीक्षा आणि त्याचे निकाल ही अपेक्षा शिक्षणाची नक्की नाही. समाजाच्या रचनेमध्ये जे वेगवेगळे प्रकारचे क्षेत्र निर्माण झाले आणि त्या क्षेत्रामध्ये महत्त्वाचं क्षेत्र शिक्षणाचं क्षेत्र आहे. कारण ज्यावेळेला विद्यार्थ्याचं उमेदीचं वय असतं त्याच वेळेला तो विद्यार्थी हा फक्त शिक्षण क्षेत्रामध्ये येत असतो शिक्षण घेण्यासाठी, आणि शिक्षण घेऊन मग तो अन्य क्षेत्रामध्ये ते जातो. त्यामुळे या समाजाला सक्षमपणे जर उभं राहायचं असेल तर शिक्षण क्षेत्रामध्ये आलेल्या विद्यार्थ्याला आम्ही काय देतो यातून तो घडतो आणि त्यानंतर तो समाज घडतो. आणि म्हणून मला एक वाटतं की हे गोसे महाविद्यालय जे आहे खामगावचं, की केवळ औपचारिक शिक्षण देऊन थांबत नाही, तर एक अनौपचारिक शिक्षण की जे समाजाभिमुख आहे. आत्ता मोदी पंतप्रधान माननीय हे पण म्हणतात की व्होकल फॉर लोकल. आत्ता जे लोकल आहे त्याच्यावर अधिक भर देऊन आपले जे टॅलेंट्स आहेत त्याला विकसित करण्याची गरज आहे. कारण आउटकम बेस्ड एज्युकेशन ही पण नवीन कन्सेप्ट ती आलेली आहे. आणि मला असं वाटतं की या धर्तीवर या महाविद्यालयाचा प्रवास आहे आणि तो निश्चितच अभिनंदनीय आहे. मला दुसरा आनंद असा पण झाला की 2016मध्ये मी एका प्रकल्पाचं उद्घाटन या ठिकाणी केलं होतं आणि ते सुद्धा याच संबंधातलं प्रकल्प होता. मलाही तेव्हा प्लॅस्टिकपासून तयार केलेले असे वेस्टपासून बुके पण त्यावेळेला आपल्या काही विद्यार्थ्यांनी दिले होते, मलाही ते आठवत आहे. आणि मी तेव्हाही त्यांचं ते कौतुक केलं होतं. आणि या प्रकारच्या विद्यार्थ्यांचं कौतुकाचं प्रदर्शन एका अर्थाने, कारण अशा विद्यार्थ्यांनी जर काही एक आगळं वेगळं जर काम केलं तर ते एक पाठीवर प्रेमाची आणि आत्मविश्वासाची थाप ही विद्यार्थ्यांच्या याच्यावर आपली पडली पाहिजे. आणि एक प्रदर्शनसुद्धा हे त्याचंच द्योतक आहे की जी कला आमच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आहे, ज्यांना आम्ही प्रशिक्षण देऊन केलं आहे, उपजातच पण असेल एखाद्याला तसंही असेल. आणि या विद्यार्थ्यांना प्रदर्शनाच्या निमित्ताने ज्या अनेक लोकांपर्यंत ही कला ही जेव्हा पोहोचेल तर तेव्हा हा जो चांगला उपक्रम आहे हा केवळ महाविद्यालयापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो समाजापर्यंतसुद्धा पोहोचेल. कारण जेव्हा जे विषय समाजाचे होतात त्यातूनच समाज हा घडत असतो. आणि आपण तर आज जागतिक स्तरावर पोहोचण्याचा संकल्प या प्रदर्शनीमध्ये आपण करतो असं आपल्या पत्रातूनही मला निदर्शनास येत आहे आणि आपल्या संकल्पनेतून सुद्धा ती येत आहे. आणि म्हणून मला एक वाटतं की एक चांगला उपक्रम शंकरराव बोबडे साहेबांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आहे की कचऱ्यातून कला हा अतिशय चांगला खऱ्या अर्थाने शिक्षणाची व्याख्या सांगणारा हा उपक्रम आहे. आणि त्यामुळे या योग्य अगदी उचित उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि ज्या ज्या विद्यार्थिनींचा सहभाग या उपक्रमामध्ये झाला आहे मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि ज्या प्राध्यापकांनी या ठिकाणी प्रामुख्याने सौ नीताताई बोबडे या अनेक वर्षापासून आपल्या विद्यार्थिनींना प्रशिक्षित करीत आहेत, मी त्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो की कारण एक समाजाभिमुख काम या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी करतो आहोत. आणि अशीच प्रेरणा भविष्य काळातही विद्यार्थिनींना महाविद्यालयाला मिळो अशा प्रकारची शुभेच्छा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि माझं भाषण संपवतो. नमस्कार, धन्यवाद. Thank you, sir. It's an honor itself to have a very beautiful, all-rounder, amazing personality as well as alumni of our college and wonderful guest with us. So I would like to request our chief guest, respected Harshal Jagdale ma'am, to say few words for us. Hello everyone, this is Harshal Jagdale, currently in USA, but I have done my bachelor's degree in science from this prestigious and renowned institute called GS College, Khamgaon. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me here as a chief guest and giving me an opportunity to say a few words. As a student of women empowerment and entrepreneurship development cell, I have learned a lot of things here.
Candle making, flower making, crochet, sewing, baking are just a few to name. I am glad to share that the things I have learned years ago are still benefiting me here in USA. Apart from saving masks for friends and family, I have also done crochet accessories and eco-friendly home decor, which I used in helping raising fund for TCBC, and I was also part of Heartland Maker Fest. There was a campaign on promoting eco-friendly lifestyle that reminded me of our mentor and trainer Neeta Bobde. She has also done a lot of work in this eco-friendly awareness program. She has made environmental friendly artifacts and jewelry. She is really a motivational person. She taught us on how one can make money, or I would say earn for living, with minimal investment. Many of her students have already started their own small businesses, and they are successful in food and art industry. This is a great initiative by GS College that they have arranged this program online on YouTube Live, and it gave an opportunity to reconnect remotely. I feel blessed and really very thankful that I could be a part of 105th birth anniversary celebration of respected Shankar Ravji Bobde. He had a dynamic personality. He was a great orator, ambitious leader, very courteous, and a man of integrity. May his blessings shower upon all of us. Finally, sending my warm regards to respected President, Principal, Guest of Honors, all the teachers and staff. My best wishes to all the students. Thank you so much. Moving on to our program, Best Out of West. Let's watch and get inspired. Thank you. Thank you, ma'am. Now I would request our energetic chief guest, Professor Monica Umag Madam, convener Swayam Siddha Udyojakta Vikas Abhiyan, Amravati, say few words about the program. नमस्कार, मैं प्राध्यापिका मोनिका उमग, शिवाजी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज अमरावती तथा संयोजिका स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान अमरावती। सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों का विशेष रूप से अभिवादन करना चाहूंगी कि जो विमर एंटरप्रेन्योर ग्रुप है, सेल है, जिनकी हेड है प्रतिभा मैम टावरी मैडम, जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है और इस कोरोना के दौर में भी जीएस कॉलेज ने अपनी विशेषता संभाल कर रखी है और ऑनलाइन इंटरनेशनल ऑनलाइन वेस्ट फॉर बेस्ट ट्रेनिंग का यहाँ ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन का इतना सुंदर एग्जीबिशन, इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन यहाँ लिया है और उसमें मुझे विशेष रूप से उद्घाटक के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है, इसलिए मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। तथा आज के इस प्रोग्राम के जो उद्घाटक है, हम सभी के आदरणीय माननीय डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर सर, कुलगुरु, इनके करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन होने जा रहा है। मैं उन्हें भी विशेष रूप से अभिवादन करती हूँ। तथा हमारे कॉलेज के प्राचार्य तड़वलकर सर और नीता मैम, जो कि मेरी टीचर रही है, मैं उनका भी विशेष रूप से यहाँ अभिवादन करती हूँ। साथ ही मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी सहभाग लेने वाली महिलाएं हैं, उन सभी का मैं यहाँ सहर्ष स्वागत करती हूँ। सभी लोग यहाँ बधाई के पात्र है कि इस कोरोना के निगेटिव दौर में जहाँ हम अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं, पैसा नहीं है, क्या करें इस दुविधा मन स्थिति में, सच में जीएस कॉलेज ने, नीता मैडम ने, टावरी मैडम ने और प्रिंसिपल सर ने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट लेकर हमारे सबके सामने आए हैं। हम सबके आदरणीय रह चुके हमारे सबके आदरणीय रह चुके शंकर लाल जी बोबड़े, जिनकी मेमोरियल में, जिनके स्मृति प्रीत्यर्थ हम जो पूरा वीक मनाते हैं, उसके अंतर्गत इस बार इतना सुंदर अभिनव ऐसा उपक्रम लिया है कि हम वैसे नहीं कर सकते तो क्यों ना हम ऑनलाइन किया जाए और इंटरनेशनल लेवल का इतना सुंदर आयोजन किया है।
मुझे बताते हुए विशेष रूप से हर्ष होता है कि मैं इस जीएस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। शायद नीता मैम को याद होगा, तो जब उन्होंने ये छोटा सा बीज डाला था, जब शुरुआत की थी वेस्ट से बेस्ट की, उसकी मैं पहली स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैं कॉलेज से ही पढ़ बढ़कर निकली और बाद में जब मैं अमरावती में आई हूँ, अमरावती में आई कुछ साल अपने नहीं कर पाई अपने फैमिली प्रॉब्लम के कारण, लेकिन पिछले 3 साल से जो संस्कार बीज मुझे जीएस कॉलेज से मिले थे, उन्हीं संस्कार बीजों का आज एक बहुत तो बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ काफी अच्छा स्वरूप आज वृक्ष के रूप में वो सामने आया है। उसका जीवंत उदाहरण आज मैं स्वयं हूँ कि उस समय जो हमें संस्कार दिए गए थे हमारे कॉलेज से कि वेस्ट से बेस्ट निकालो, महिलाओं के लिए कुछ करो, उस समय जो मैंने देखा था नीता मैडम का, साथ ही में प्रतिभा टावरी मैडम का, या हमारे वीमेन सेल्स का, जीएस कॉलेज की जितनी भी एनएसएस की टीम थी उनका, कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए कुछ करना है। और उस समय मैं उसकी पहली स्टूडेंट थी, तो वो सारे संस्कार बीज मेरे भीतर थे। मैं कुछ करना चाहती थी महिलाओं के लिए, और मुझे वही समय मिला, मतलब वही चांस मुझे मिला यहाँ अमरावती में। अमरावती के प्रसिद्ध उद्योजक तथा सामाजिक कार्यकर्ता एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय किरण भाऊ पातुरकर, इन्होंने स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान की जब शुरुआत की, उन्होंने पहले तो एक अवार्ड फंक्शन लिया था जिसका संचालन के लिए मुझे बुलाया, और संचालन करते समय मैंने उन्हें एक सवाल पूछा था और वहां से मेरी पूरी लाइफ बदल गई और इस अभियान का एक स्वरूप सामने आया कि हम क्यों ना हमेशा, मैंने सवाल पूछा था कि हम हमेशा उन औरतों के लिए करते हैं जो कि बड़ी हो चुकी है, जो कुछ तो भी हम अवार्ड भी उन्हीं को देते हैं जो अचूक कर सकती है, लेकिन जो प्रोग्राम का शोभा बढ़ाती है उनके लिए कभी कोई करता नहीं है। सर सही मायने में उस दिन ये अवार्ड फंक्शन 8 मार्च का जागतिक महिला दिन का जो अवार्ड फंक्शन है वो उस दिन सही रूप से, सही मायने में सही होगा जिस दिन हम बैठे हुए प्रेक्षकों में से एक नए उद्योजक तैयार करेंगे। और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई मेरे इस प्रश्न से। फिर किरण भाऊ ने मुझे कहा था कि आप क्या कर पाएंगी। तब मैं वीएमबी कॉलेज में जॉब कर रही थी, तो फिर जॉब छोड़कर हमने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत हमने जितने भी विदर्भ के अंदर महिलाएं हैं और सुशिक्षित बेरोजगार युवक है उनके लिए अभियान शुरू किया। और आज मुझे बताते हुए विशेष हर्ष हो रहा है कि केवल 3 साल के अंदर ही हमने तकरीबन 100 से अधिक महिला उद्योजकों को, यहाँ महिला एवं युवा उद्योजकों ने हमारे अभियान के अंतर्गत खुद का व्यवसाय एवं उद्योग शुरू कर चुके हैं। उन्होंने आज अपना खुद का यूनिट लगाकर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगी कि वो उद्योग शुरू करते समय डर जाती है कि मैं प्रोडक्शन तो कर लूंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन करना बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी मार्केटिंग कहाँ से होंगी, है ना। मैं जानती हूँ कि आज इस सेमिनार से जो लोग भी ट्रेनिंग लेंगे उनको सबसे पहले यही प्रॉब्लम आएगा कि नीता मैम ने तो हमें बहुत अच्छा सिखाया, हम प्रोडक्शन भी करेंगे, लेकिन मैडम उसका मार्केटिंग कैसे करें। तो उस मार्केटिंग के लिए भी स्वयं सिद्ध उद्योजकता विकास अभियान अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। ऑलरेडी कुछ प्लेटफॉर्म तैयार भी हो चुका है, 1-2 लोगों ने हमारी वेबसाइट जिसके साथ हमारा टाई अप है, तो उस पर हम आपके प्रोडक्ट डालकर वो भी आप बेच सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, या बड़ी ऑर्डर आती है तो वो भी हम देते हैं सभी ऐसे लोगों को। लेकिन अब हम स्वयं सिद्ध अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जहां से हम आपके सभी आपके माल लेकर हम दूसरी जगह बेच सकते हैं। सुजाता मगने नाम की एक स्वयं सिद्धा में काम करते हैं जो ऐसे मॉल बना रही है महिलाओं के, बचत गट या फिर स्वयं जो खुद का व्यवसाय करती है, जैसे पतंजलि के मॉल है, ऐसे मॉल विमेन हाइक नाम से मॉल निकालने का उनका प्रोजेक्ट है। कोरोना के कारण रुक चुका है, अगर कोरोना के बाद वो शुरू करती है तो उस मॉल में भी आप आपके प्रोडक्ट रुक सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, आप कुछ भी बेच सकते हैं, सिर्फ आपको आपके खुद के प्रोडक्ट पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसमें फिनिशिंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल की आनी चाहिए, उसका पैकेजिंग, क्योंकि लोग उसकी गुणवत्ता के पहले बाहर का पैकेज देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं, इसलिए वो पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव और बहुत सुंदर होना चाहिए। वो उस पर एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, उसके साथ उसका फिनिशिंग वो तकलादू नहीं होनी चाहिए, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत
अच्छी होनी चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी अगर अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, और आपने एक जैसी टेस्ट मेंटेन की। मुझे याद है कि नीता मैडम के हाथ का चूड़ा आप कभी भी खाइए, हमेशा एक जैसा लगता है। लेकिन जो औरतें उनसे सीखती है, उनकी इसमें 19-20 हो सकता है, मैम की इसमें कभी नहीं होता है। तो आप ये जो ट्रेनिंग है उसको उतनी ही गंभीरता से लीजिए और बिल्कुल परफेक्ट अपने खुद के प्रोडक्ट बनाइए। अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली लोग खरीदने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा मार्केट है, वास्ट मार्केट है। इस क्षेत्र में काम करती हूँ इसीलिए बता रही कि सच में बहुत बड़ा वास्ट मार्केट है, आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उस लेवल पर आपको आपका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर सकती है। और अंत में केवल मैं सभी महिलाओं को एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम हमेशा अपने आप को बांध कर रखते हैं कि मैं महिला हूं तो मैं ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। तो मैं उन सभी महिलाओं को हमेशा कहती हूं कि महिलाओं के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस दिन वो खुद को बड़ा समझती है, वो सोचती है कि मुझे बड़ा होना है, उस दिन उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वो अपने आप में बहुत तूफानी ताकत होते हैं। हम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने खुद के प्रोडक्ट पर विश्वास रखिए और स्वयं सिद्धा उद्योजकता विकास अभियान, नीता मैडम, प्रतिभा मैम, प्राचार्य सर, हम सभी लोग आपके साथ में हैं। बिल्कुल घबराइए मत, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। यही हमारा नारा है स्वयं सिद्धा का। आप मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, जब भी आपको किसी भी स्टेज पर, चाहे आपको लोन केस बनानी हो, चाहे आपको आपका प्रोडक्शन करना हो, चाहे सेलिंग करना हो, चाहे मार्केटिंग करना हो, किसी भी प्रकार की मदद लगे तो जरूर मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन करूंगी। मैं कमिटमेंट करती हूँ, क्योंकि ये कमिटमेंट मुझे प्रतिभा मैम ने मुझसे ली है, तो मैं डेफिनेटली, और मेरा मायका है, तो मैं डेफिनेटली आप सभी को बहुत मदद करूंगी। तो आप मेरा नंबर लीजिए 7972473374। स्क्रिप्ट बॉक्स में वो मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा। आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, जरूर सेवा का मौका दीजिए। हम आपके साथ हैं, घबराइए मत, उद्योजक बनिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Now I would like to request Chairperson Honorable Dr. Subhash Ji Bogde sir, President of Vidarbha Shikshan Prasarak Mandal Khamgaon, for Presidential Address. Honorable Vice Chancellor, Amravati University and friends, every year Late Shankarrao Bogde Memorial Week is organized from 18 September to 24 September in our college with various programs. This year, due to Corona outbreak, it is being organized online and that to international level. There is very good response. I congratulate organizers, Women Empowerment and Entrepreneurship Development Cell and all participants. Corona outbreak is at peak. Please stay in and stay safe. Take care. Thank you. थैंक यू सर। अब आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को निमंत्रित करती हूँ तथा हमारे मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, हमारी आन बान शान और इस प्रोग्राम की जान नन अदर देन नीता बोबड़े मैडम, इनको अपने हुनर, अपनी कला तथा प्रशिक्षण देकर हम सब की खुशहाल और रंग बिरंगी दुनिया में और भी हसीन रंग भरने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सो प्लीज वेलकम नीता बोबड़े मैम। Thank you, ma'am. Now we come to the last part of this inaugural program. It's time to propose the vote of thanks for inaugural session. I will invite Dr. Dharamkar madam for the vote of thanks. नमस्ते, मैं हूँ नीता बोबड़े। 24 सितंबर आज का दिन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के ही दिन इस कॉलेज के माजी अध्यक्ष स्वर्गीय शंकरराव जी बोबड़े, इनका जन्म हुआ था। इस अवसर पर जीएस कॉलेज के माध्यम से हर साल 18 सितंबर से 24 सितंबर तक सप्ताह मनाया जाता है और काफ़ी
काफ़ी अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर किए जाते हैं। तो इसमें से ही एक है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से ऑनलाइन एग्जीबिशन, ट्रेनिंग एंड एग्जीबिशन। तो मेरी एक ये प्रदर्शनी है, मैंने खुद ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं और इसको अब मैं डिस्प्ले करूँगी। इसकी विशेषता ये है कि हर चीज़ मैंने खुद बनाई है और वो वेस्ट में से ही ज़्यादातर बनी हुई है। आप देखते हैं इस स्लाइड का। इसके कंटेंट्स आप देख रहे हैं। सबसे पहला हम देखेंगे होम डेकोर वॉल हैंगिंग्स फ्रॉम फ्रेम वेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस फ्रेम वेस्ट? ये ऐसी चीज है जिसका अभी तक किसी ने भी उपयोग नहीं किया है। फ्रेम इंडस्ट्री के जो वेस्ट है, जो स्क्रैप है, वो इस तरह के टुकड़े होते हैं। ये 4 साइज तरह के टुकड़े होते हैं जिनको आपस में जोड़कर मैंने कुछ वॉल हैंगिंग्स और वॉल डेकोर्स बनाए हैं। देखिए, सबसे पहला आप देख रहे होंगे, ये है डोर डेकोरेशन का पीस है। हम इसे मराठी में तोरण बोलते हैं। तो ये तोरण बना है इन चीजों से, इन टुकड़ों से। वो ऊपर जो है इसका बॉर्डर है, बचा हुआ जरी का बॉर्डर है, उसको मैंने इसको अटैच किया है। नीचे आप देख रहे हैं वो स्क्वायर शेप जो आपको दिख रहा है, ये है सिरामिक के हैंडमेड बॉल, मतलब क्यूब्स, और इसको मैंने वहां पर यूज किया है। इसमें मोती भी यूज किए गए। तो बहुत कम खर्चे में ये चीज बन जाती है और बहुत सुंदर भी लगती है। तो इसकी विशेषता ये है कि इस प्रोजेक्ट में, इस फ्रेम वेस्ट के प्रोजेक्ट में हम काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन बना सकते हैं, इनको अलग अलग तरीके से जॉइंट करके। देखिए, आप नीचे जो आप देख रहे हैं ऊन के टुकड़े मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। फ्रेम बन सकती है इसकी, और आप इसमें मिरर भी लगा सकते हैं। जो कुछ भी आपका मन करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसे गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो आप बनाइए ऐसे डिज़ाइंस। हमारी भारतीय संस्कृति का एक शुभ चिन्ह रहता है कलश। तो सिर्फ इन टुकड़ों को जोड़कर हमने कलश बनाया है, और बच्चों को अगर ये सिखाया जाए तो बच्चे बहुत खुशी से ये करेंगे। और भी देख रहे हैं हम, वॉल हैंगिंग है। आगे भी आपको ये सारी चीज़ें फ्रेम मेकिंग इंडस्ट्री के स्क्रैप से, वेस्ट से बनाई है। उन लोगों के किसी काम में नहीं आता है, वो लोग फेंक देते हैं। तो हम अगर इसको यूज़ करें, रिसाइकिल करें, तो पोल्यूशन भी कम होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चों को कुछ नया सामने आएगा तो वो ज़रूर करेंगे। तो स्कूलों में ये सिखाया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने शुरुआत तो कर ही दी है, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हम देखेंगे वही डिज़ाइंस है जो हमारी शुभ चिन्ह है, स्वस्तिक है और ये कलश है। हम इससे की होल्डर्स भी बना सकते हैं। आप नीचे सिर्फ लूप लगा दीजिए, की होल्डर्स बन जाएंगे। जी हाँ, इस एग्जीबिशन का नाम जो इंटरनेशनल लेवल पर जब दिया गया है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि कहीं नहीं है, या जो बिल्कुल शुरुआत ही जिसकी है, ऐसे नई चीज़ें होनी चाहिए। और इसीलिए इस एग्जीबिशन में आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो है ही नहीं मार्केट में। देखिए, क्या आप बता सकते हैं किस चीज़ की फ्रेम है? क्या क्या यूज़ किया होगा इसमें? जी हाँ, इसको कभी यूज़ ही नहीं किया गया है, इसलिए ये पहली बार हो रहा है। ये है इसका नाम है कैलाट्रोपिस। इसका साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है कैलाट्रोपिस। ये हम इसको बोली भाषा में, इसको लोकल लैंग्वेज में बुड्ढे के बाल बोलते हैं। देखिए कितना सुंदर है। निसर्ग जो कुछ भी, नेचर जो कुछ भी दे रहा है, कुदरत बहुत बढ़िया है। और यही दिखाने का मेरा प्रयास है कि हम इससे क्या कुछ बना सकते हैं। देखिए,
चांदी जैसे लगते हैं, इसीलिए शायद इसको बुड्ढी के बाल बोलते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि शायद ही किसी के बाल सफ़ेद है, सबके बाल काले हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। लेकिन आज से हम इतना तो हम कर सकते हैं कि इतनी सुंदर चीज़ को बुड्ढी के बाल नाम देने के बजाय हम इसे सिल्वर सीड्स कह सकते हैं। ये सीड्स है, ये कैलाट्रोपिस के सीड्स है, जिसके ऊपर ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। बहुत अच्छा शाइन करता है, चांदी जैसा दिखता है। हमारा खामगांव सिल्वर सिटी है, तो क्यों ना फलों में भी सिल्वर आ गया है। देखिए, तो ये फ्रेम्स जो है, सेकंड फ्रेम में आप देखेंगे, सॉरी, इसमें मैंने इनविटेशन कार्ड को यूज किया है। गणेश जी है, शादी का इनविटेशन कार्ड था, उसे मैंने यूज किया है, मतलब उसका भी यूज हो गया है। पहली फ्रेम में यूज एंड थ्रो प्लेट है, प्लास्टिक का प्लेट है, जो कि पार्टीज में बहुत बड़े पैमाने पर फेंक दिया जाता है। तो यूज एंड थ्रो प्लेट में मैंने इसको अरेंज किया है। जो फ्रेम आप जो मूर्ति देख रहे हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की घर पर बनी मूर्ति है, जो कि लक्ष्मी माता की है। तो ये फ्रेम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, दिस प्रोजेक्ट शोज दैट यू हैव नथिंग टू इन्वेस्ट इन दिस ब्यूटीफुल, in making these beautiful things. This is the most important thing. So this is based out of waste. And now the second frame is made of acrylic. I bought it from market and then I mounted there my invention. Yes, this is my invention, I can say. And I want to let you know what nature is giving us and what we are just throwing, we are ignoring, we are not looking at nature, we are not listening to him. Now he is saying something and we have to hear, we have to listen, and we have to make progress in our life, and we have to become happy. Happiness is most important today in this pandemic days, in these days. So happiness comes when we are happy, and we are happy when we do the work which we like. And that's why hobby is the most useful and most useful thing today. So now the next frame, now the next slide. Yes, see, when we do something, the new ideas automatically strike our brain, and we make different things from only one byproduct. That means one product. See, the first frame I have used their invitation card again, and then second, the structure of the flowers is different. I have used this thing and I made petals out of this, and the arrangement of petals is different, and the different flowers are made out of that. See, yes. This fifth frame is wooden frame. This is wooden frame. The carpenters can get a big business by making these frames when they will provide these frames to some organization where they will make these frames. So this is wooden frame. Again, there is the last frame. It is use and throw plate, and it is the lid of the paint container. The lid of paint container, they will not be thrown again now, and they will give us beautiful things. So you can use all these things and you can make such things. I am going to train you after this session and after this program. Yes. Now the next thing we are going to see, amazing handmade crafts. Now why the word amazing? Why this word amazing? Because you will watch the jewelry which I have made out of waste things. I have to show the raw material, because I don't think that you can recognize what waste material is used where. So it is very interesting
please watch this video and know something new. So what is there in this amazing craft? Handmade craft. Yes, there is no machine. Can you see this jewelry? Beautiful jewelry. ये क्या है? क्या आप पूछ सकते हैं इसमें जो बीड्स है वो किस चीज के हैं? ये है वैजयंती बीड्स और जो पेंडेंट है वो है शंख से बना है, शेल से। अब क्या है वैजयंती बीड्स? क्या है कि ये सीड्स है, एक लंबी घास है जो 6 से 7 फीट तक ऊंची बढ़ जाती है, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर आते हैं जिसको हम वैजयंती सीड के नाम से जाना जाता है। फार्मर्स को पता ही नहीं है कि उसके खेत में वैजयंती सीड्स आ रहे हैं, वो अनजाने में ही इनको फेंक रहा है, जो कि सच्चे मोती है। इसमें छेद भी है, ओरिजिनली इसमें छेद है और बहुत सुंदर ये है। सफ़ेद, काले और ग्रे कलर में ये मोती आते हैं। अब हमें देखना चाहिए कि हमारे खेतों में क्या कुछ आ रहा है, हम क्या कुछ फेंक रहे हैं। ये सारी ज्वेलरी आप जो देख रहे हैं वैजयंती ज्वेलरी की, वैजयंती ज्वेलरी के ये आपको डिजाइन दिख रही है। ये मेरे अपने खुद के डिजाइन से। यस, ये भी वैजयंती ज्वेलरी के डिजाइन से कंगन देख रहे हैं आप, और उसमें मैंने मराठी में लिखा है निसर्गाचं देणं वैजयंती, यस, निसर्गाचं देणं खरे मोती जाणं। यस, ये सच्चे मोती है जो नेचर्स की गिफ्ट है। लास्ट में आप देख रहे हैं ये है तोरण, हम मराठी में बोलते हैं इसको। ये भी वैजयंती से बना हुआ है। इसका आप नवरात्रि में आप कमरबंद भी बना सकते हो, मतलब गहना भी है और डोर डेकोरेशन भी है। फिर ये सारी आजकल हम देखते हैं कि नया ट्रेंड निकला है ज्वेलरी का, हल्दी ज्वेलरी और बेबी शावर ज्वेलरी। तो ऐसी ज्वेलरी जो हम फूलों की खरीदते हैं, ताज़े फूलों की, जो कि एक ही दिन में वेस्ट हो जाती है, दूसरे दिन हमें फेंकना पड़ता है और उसकी प्राइस 3000 से भी ऊपर है। अगर ये सच्चे मोतियों के गहने इस तरह से कोई बनाएगा और बेचेगा तो उनको हज़ारों रुपए मिल सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको बनाता है, हम इसकी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। ये बीच वाली फोटो में इस लड़की ने जो पहना है वो वैजयंती का ही सेट है। और फर्स्ट जो पहली वाली आप देख रहे हैं, सॉरी, तो ये भी आपको पहचानना है कि ये है क्या, किस चीज़ से ये ज्वेलरी बनी है। पहली वाली ये जो रेड और सफ़ेद जो आपको दिख रहे हैं मोती, ये भी नेचर्स गिफ्ट है। पूरी एग्जीबिशन का नाम ही नेचर्स गिफ्ट है। ये है गुंजा सीड्स। आप अगर गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको गुंजा सीड्स दिखाई देंगे। आप उसमें देख सकते हैं इस तरह की गुच्छे होते हैं फलियों के, गुंजा सीड्स। इसमें से सफ़ेद सीड भी मिलते हैं और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें से रेड सीड्स निकलते हैं। तो ये है रेड गुंजा, और अभी मैंने आपको बताया ये है, इसमें से निकलता है वाइट सीड्स, जिसको हम बोलते हैं वाइट सफ़ेद गुंजा। अभी इसके ये फलियाँ अभी कच्ची है, इसलिए इसमें छोटे दाने निकलेंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तब हम इसकी ज्वेलरी बना सकते हैं। तो इसकी विशेषता ये है ज्वेलरी की कि इसमें हमें छेद बनाने पड़ते हैं गुंजा ज्वेलरी में, और वैजयंती में छेद होते हैं, उनको उसमें नेचुरली छेद होते हैं। तो इसे हमें छेद बनाना पड़ता है, फिर से इसकी ज्वेलरी हमें बनानी पड़ती है। आगे देखते हैं इस अमेजिंग हैंडक्राफ्ट में क्या है। यस, दिस इज अगेन पजलिंग थिंग। क्या है? सोने जैसा लग रहा है ना गहने, गोल्ड ज्वेलरी, और ये नेचर्स गोल्ड है, नेचर्स ज्वेलरी है। ये है यूकेलिप्टस ट्री, नीलगिरी के झाड़ के नीचे हमें 3 टाइप के रॉ मटेरियल मिलते हैं। ये नीलगिरी के सीड्स है, फ्रूट्स होंगे शायद, फ्रूट्स और
पता नहीं कलियां, मुझे इसका इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे जो कुछ मिला झाड़ के नीचे उसको मैं उठा कर ले आई और उससे काफ़ी डिज़ाइंस मैंने बनाए हैं। ये सारे यूकेलिप्टस के सीड्स है। प्रकृति इतनी सुंदर चीज़ें बनाती है, लेकिन हम उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं। ये जो है नीलगिरी के झाड़ के नीचे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये घुंघरू है, हम जो पीतल के घुंघरू हम यूज करते हैं ना, उसी शेप के है। शायद इसी से मनुष्य ने प्रेरणा लेकर घुंघरू बनाए। ये पहले प्रकृति ने बनाए, देखिए बिल्कुल घुंघरू जैसा है। तो इसको मैंने ऐसे ज्वेलरी में यूज किया है। वहीं पर मुझे कलियां मिली, देखिए कितने सुंदर कलियां हैं, और इससे भी मैंने सेट्स बनाए। शायद आपको तो ये कलियां हैं। आप अगर अभी आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो आपको इसके लिए नीलगिरी के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ जाके देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी, और ये ड्यूरेबल है। 20-25 साल पहले मेरी ज्वेलरी वैसे की वैसी है, खराब भी नहीं होती। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें लगता है कि नेचर से जो मिला वो खराब होगा, लेकिन ये नहीं होता है। आगे देखते हैं क्या है हमारे इस एग्जीबिशन में। यस, दिस इज अगेन डिफरेंट थिंग। कैन यू से व्हाट इज दिस? ये है शेल्स, ये है शंख। रेत में जो शंख, हम बचपन से हम रेत के शंख जमा करते हैं क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं, और हर बच्चा ऐसे रेत के शंख जमा करके घर पे लाता है, कुछ दिन खेलता है और फिर फेंक देता है। अब आगे से हर बच्चा इस शेल से कुछ अलग चीज़ बना सकता है, ज्वेलरी बनाकर अपनी मम्मी को तक दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। तो ये शेल्स इस तरह से ज्वेलरी में काम में आए हैं, देख लीजिए। और ये गहने पहने भी जा सकते हैं, ये सिर्फ शो के नहीं हैं, हम इनको पहन सकते हैं। मैं हमेशा पहनती हूँ, देखिए मैं ये ज्वेलरी पहन सकती हूँ। ये है मांग, ये लास्ट वाला जो इमेज आप देख रहे हैं गहना, ये है मांग टीका। मांग टीका मतलब यहाँ से जो होता है और बाजू में जो होता है, दुल्हन पहन सकती है या फिर जो लड़कियाँ डांस करती हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो ये हम शंख से बना सकते हैं, सिर्फ धागा है और उसके ऊपर शंख चिपकाए गए हैं और ये ज्वेलरी बन गई है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अगेन नो पेनी, नो रुपी, नो पेनी यू हैव टू स्पेंड ऑन दिस टोटल क्रिएशन बेस्ड आउट ऑफ बेस्ट एंड नेचर्स गिफ्ट। सो नेचर ने जो कुछ दिया है उसे मैं कभी भी वेस्ट नहीं बोलती हूँ। ये वेस्ट नहीं है, इसे हमने वेस्ट बनाया है, हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं है। और जो चीज़ें नेचर हमें दे रहा है उनको भी हम खराब कर रहे हैं। मतलब हवा है, पानी है, ज़मीन है, सब कुछ हम पोल्यूटेड कर रहे हैं, सब कुछ हम प्रदूषित कर रहे हैं। ये है आगे जो ये गहने दिख रहे हैं आपको, ये हैंडमेड ज्वेलरी है। ये बनी है सिरामिक से, दैट मीन्स मिट्टी से बनी है। हमने गणेश मूर्ति बनाने का एक ऑनलाइन प्रशिक्षण का प्रोग्राम लिया था, उसमें से कुछ मिट्टी बच गई थी, तो ये भीगी हुई मिट्टी को मैंने सिर्फ उंगलियों से, इस तरह से उंगलियों से शेप देकर ये गहने बनाए हैं। और ये ऐसे लगता है जैसे स्टोन है। आप जिस भी कलर में इसको कलर करोगे तो आपको मैचिंग साड़ी के ऊपर या ड्रेस के ऊपर मैचिंग सेट आप बना सकते हो, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। 1 घंटे में ये पूरा सेट तैयार हो जाता है। आपको 5 बजे पार्टी जाना है, आप मैचिंग ड्रेस बनाकर, सूख भी जाए, ठीक है, मिट्टी को सूखने के 1 दिन सूखने में लगेगा, लेकिन कलर करके आप पहन सकते हो और बना सकते हो अपने हाथ से। ऐसे ही ये जो बीच वाली जो गहना है गले का है और वो कान का है, तो ये सेट बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। देयर इज द ऊन, देयर इज द थ्रेड, रेड थ्रेड विच वॉज ब्लैक थ्रेड। ये बचा हुआ था, हम स्टोल बनाते हैं उसमें से बचा था, उसको मैंने यूज़ कर लिया और उसके ऊपर ही ये बीड्स हमने माउंट किए हैं। इसको छेद नहीं है, हमने उसको पिरोया नहीं है। और देखिए लास्ट वाला, ये जो है गोल गोल राउंडेड बीड्स है, ये हाथ से बनाए गए हैं
और उसको जब गीले थे तभी छेद बनाया गया और उसको फिर बाद में भिगोया गया। एक 6 साल के बच्चे ने ये सेट बनाया, आप विश्वास करोगे? उसको सिर्फ मैंने बताया कि आप इसको गोल गोल बनाइए हाथ पर, उसने हाथ पर गोल बनाए और फिर मैंने उनको बोला कि इसमें छेद बना के इसके, तो उसे इतनी खुशी हुई कि मैं कितना सुंदर सेट बना सकता हूँ, कितना सुंदर गहना बना सकता हूँ और भी। और उसके लिए मम्मी को बोलना नहीं पड़ा, पापा को बोलना नहीं पड़ा कि ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, महंगी चीज़ें लाओ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ और टाइम। आजकल आप देख रहे हो कि टाइम मतलब लाइफ कितना ज़रूरी हो गया है, कितना महंगा हो गया है, हर सांस के लिए हम तड़प रहे हैं और ये सब हमें हमारी ही गलतियों का नतीजा है और अब हमें इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो ये है मिट्टी के गहने। आगे जी हाँ, ये है ब्यूटीफुल बुकेज, ब्यूटीफुल बुकेज। ये जो पूरी एग्जीबिशन है इसमें ज्वेलरी है, बुकेज है, फ्रेम्स है और कैंडल की चीज, वैक्स की चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या है। ये फर्स्ट वाला इमेज आप देखिए, जो फ्लावर्स आपको गोल्डन दिख रहे हैं ये है पिस्ता शेल्स, पिस्ते के छिलके हैं। और नीचे जो मटके जैसा है ना, ये मटका नहीं है, ये है कड़वा कद्दू हम बोलते हैं। ये फल होता है, एक बेल पर आते हैं ये फल, जिसे कोई खाते नहीं है, मतलब कड़वा रहता है और इतना हार्ड होता है कि ये हम मतलब पचता ही नहीं, इसलिए कोई खाता नहीं है इसको। डोर भी मतलब जानवर भी नहीं खाते हैं। तो ये है लकड़ी जैसा एकदम उसका स्टिफ और उसका थिक कंस्ट्रक्शन है, जिसको मैंने ऊपर से काटा है। जी मैं आपको दिखाने के लाई हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन से दिखाना ज़्यादा बेहतर है। तो ये है कड़वा कद्दू, ये छोटा है, इससे भी बड़े बड़े फल होते हैं। इसको मैंने सॉरी इसको मैंने काटा है और फिर उसका ये फ्लावर पॉट बन गया है। आगे जो है ये पिंक फ्लावर्स आप देख रहे हैं। आजकल प्लास्टिक की जो कैरी बैग्स है, पन्नियाँ हैं, वो बंद हो गई है, लेकिन दूसरी थैलियाँ, दूसरा जो कैरी बैग्स है वो आ गए हैं मार्केट में, जो कि कपड़े से बना है। कोई नायलॉन जैसा कपड़ा होता है और उसकी ये थैलियाँ हैं, तो उससे ये फ्लावर्स बने हैं। मतलब हमने तो हमारे जीएस कॉलेज में जो मेरा हर साल ट्रेनिंग होता है वुमेन एम्पावरमेंट सेल में, वहाँ पर मैंने इन थैलियों से, ये प्लास्टिक कैरी बैग है, तो इसको रिसाइकल किया, इसको रीयूज किया और उसके फ्लावर्स बनाए जो ऐसे ही बने हैं। और बुके बनाकर हमारे स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है वो बेचकर पैसे कमा रही है और अपना जो उनका एजुकेशन है वो तक पूरा कर रही है। इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर उनको पैसे भी मिल रहे हैं और यही इस एग्जीबिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही हमारी इच्छा है कि लोगों को पैसा मिले, लोगों को जिसको ज़रूरत है उन्हें कुछ अर्निंग मिले। तो ये है अर्निंग आर्ट। ये सेकंड से नीता का जो लॉन्ग फॉर्म होगा ये होगा NEETA, दैट मीन्स नेचर्स इको फ्रेंडली अर्निंग टैक्स ऑफ आर्ट। यस, ऑल दिस आर्ट टाइप्स, दिस कैन गिव यू मनी एंड सो दिस इज अर्निंग आर्ट। सो अब ये आखिरी देख रहे हैं आप, जो सिल्वर और गोल्डन कलर्स के फ्लावर्स है और नीचे जो आप बेस देख रहे हैं फ्लावर पॉट का, बुके का जो बेस है वो है थर्माकोल का लॉग, मतलब टुकड़ा, जो कि कूड़े करकट में बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। थर्माकोल का ये टुकड़ा है, उसको मैंने लेस लगा दिया, ब्रोकेड लेस, जरी का टुकड़ा था लेस का। जी मैं कपड़े भी बनाती हूँ, सिलती हूँ, उसमें से भी जो कुछ बचता है वो सभी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सिल्वर ये ब्रोकेड लेस है। तो ये जो बुके हैं ये फ्लावर्स किस चीज़ के बने हैं लेकिन इतने सुंदर, गोल्डन और सिल्वर। तो ये है बफे पार्टीज में जो टेबल टॉप्स होते हैं, जो कागज होता है प्लास्टिक जैसा, गोल्डन सिल्वर, ये बफे टेबल के टॉप के कागज के मैंने रीयूज कर लिया है इसको। जी मुझे जब हमारे यहाँ पार्टी होती है, हमारा परिवार बहुत ही खुशियाँ पसंद है और खुशियाँ बांटना चाहता है और हमेशा पार्टियाँ होती रहती है।
तो जब भी हमारे यहाँ पार्टी होती है तो दूसरे दिन मेरा यही काम होता है कि वो टेबल टॉप निकाल लूँ और उससे फ्लावर्स बनाऊँ। तो एक बार 25 फ्लावर बनाकर किसी की सिल्वर जुबली में मैंने वो बड़ा सा बुके गिफ्ट किया। उन्हें समझ में भी नहीं आया क्या चीज़ है, और बहुत सुंदर बुके बना था। देख लीजिए आप, इतने सुंदर ये फूल बनते हैं। तो ये है रिसाइकलिंग ऑफ पार्टी वेस्ट। देर आर टू मेनी थिंग्स वी थ्रो इन ट्रैश ड्यूरिंग आफ्टर द पार्टी। सो everything I have use and throw, thermocol cups and plates and everything. जो प्लेट्स है उसमें से फ्रेम बन गई, जो यूज एंड थ्रो थर्माकोल कप्स है उसमें से फ्लावर्स बन गए, हाँ सब कुछ। तो देखिए आगे आगे हमारे इसमें इस एग्जीबिशन में क्या है। अगली साइड ये है। मैं आपको पहली इमेज के बारे में बता दूं। ये है नारियल का डंठल। मतलब जब हम नारियल पानी पीने जाते हैं गाड़ी पर, और वो जो हरा नारियल का पानी हम पी लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी पर से एक ट्रक भर भर के ऐसी चीजें डंपिंग ग्राउंड में जाती है। ट्रक भर भर के ऐसी चीजें डंपिंग ग्राउंड में जाती है। तो मैंने वहां से उठा के लाई हूँ। और इससे मैंने क्या बनाया, आगे आपको अगली साइड में आपको दिखेगा कि इससे मैंने क्या बनाया। मैंने दिया बनाया है, लेकिन इससे बुके बन सकता है। इस तरह से हम यहाँ पर नेचुरल फ्लावर्स लगाकर इसका बुके बना सकते हैं। तो इसका रिसाइकलिंग भी हो जाएगा और बाहर जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी कम होगा। क्योंकि स्कूल में अगर सिखाया जाए तो हजारों बच्चे होते हैं वहाँ पर, और एक साथ हजारों चीज़ें लगेंगी तो उतनी उठाई जाएगी और उससे सुंदर चीज़ें बनेगी। और अगर स्कूल एग्जीबिशन करता है, सेल करता है, तो स्कूल को फंड रेजिंग प्रोग्राम भी मिल सकता है। तो ये सारा इस एग्जीबिशन का मेन क्राइटेरिया है। अब जी ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं ना फ्लावर्स, बीच वाले बुके में ये येलो और पिंक जो फ्लावर्स है ये बने हैं मकई के छिलके से। दिस इज स्किन ऑफ स्वीट कॉर्न। छिलके हैं मकई के, इससे वो फ्लावर्स बने हैं। हम आज इससे फ्लावर बनाना भी सीखने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कितना इजी है और कुछ इसमें सामान नहीं लगता है, हाथ से ही बन जाता है। और ये प्रकृति की देन। आई लव नेचर। प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है। क्या कुछ दे रही है, इस एग्जीबिशन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको बहुत थोड़ी चीज़ें दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये मैजिक फ्लावर्स है जो सूखने पर भी ऐसे ही रहेंगे, और अगर आप गीला कर दोगे फिर से फ्रेश हो जाएंगे। आप कलर में डुबो दोगे कलरफुल हो जाएंगे। बहुत सुंदर है, और इससे भी जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। बच्चों को क्रिएटिविटी मिलेगी। बच्चे क्यों, हम बड़े भी बना सकते हैं। मैं थोड़ी ना बच्ची हूँ, फिर भी मैं बनाती हूँ, खुश हो जाती हूँ और आपको दिखा भी सकती हूँ। देखिए यस, आगे की फ्रेम भी वही है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जीबिशन है इसमें जो अभी दिखाए गए फ्लावर्स वो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं ये भुट्टा ले रही हूँ स्वीट कॉर्न, और इसके छिलकों से हम बनाएंगे फूल रोज। इसको क्या करना है, सिर्फ इन पत्तियों को इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ, इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करना है। सारी पत्तियों को हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए किसानों को उनके एक भुट्टे से अगर 5 या 10 रुपए मिल रहे हैं, तो वो भुट्टा निकालने के बाद जो छिलके वो फेंक रहा है,
उससे भी वो फूल बना सकता है और एक भुट्टे के 5 रुपए की जगह 10 रुपए भी कमा सकता है अगर चाहे तो। और बच्चे भी इसको आराम से बना सकते हैं, बहुत ही इजी टाइप है। इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें धागा लग रहा है ना, कोई स्टिक है ना, फेविकॉल है ना कुछ है, सिर्फ ये भुट्टे को मैं यूज कर रही हूँ, अंदर की ओर इसको फोल्ड कर रही हूँ। मैं जब अमेरिका गई थी अपनी बेटी के पास तो वहां पर भी मैंने देखा कि भुट्टे काफी मतलब भुट्टे की खेती भी दिख रही थी, तो वहां पर भी ये बन सकते हैं। बच्चों के लिए अच्छी क्रिएटिविटी है। देखिए इस तरह से पूरे मैंने फोल्ड कर लिए पेटल्स, इसके जो स्किन है, और इसको सिर्फ मैं इसको हटा दूंगी। अब हटाने के बाद आप देखेंगे कि इसका एक सुंदर रोज बन गया है। ये है फ्लावर। कुछ ही मिनट में ये फ्लावर तैयार हो जाता है। अब इसको हम अगर कलर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ, सिर्फ पानी है, बाउल में पानी लिया है और इसमें कोई भी कलर हम डाल सकते हैं। मतलब ये एडिबल कलर है। वैसे तो होली के जो कलर्स बचते हैं, गुलाल वगैरह, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ पानी लीजिए, उसमें कलर डाल दीजिए और इस कलर्ड सॉल्यूशन में आप ये फूल को डिप कर दीजिए। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप रात भर भी रख सकते हैं और फेंट कलर के लिए तुरंत भी निकाल सकते हैं, या कोई भी वाटर सोल्यूबल कलर भी इसमें चलेगा। अब इसको, ये एडिबल कलर है, इसको मैं पानी में डाल रही हूँ। अगर डार्क फ्लावर चाहिए तो आप कलर ज्यादा डालिए, फेंट चाहिए तो कलर आप कम डालिए। और इसमें ये फ्लावर्स को सिर्फ डिप कर दीजिए। 2 मिनट में ही इसमें कलर आ जाएगा। हम दिखाएंगे आपको। ये फ्लावर्स जो है सूखने के बाद भी ये सुंदर दिखते हैं। और अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप उनको सिर्फ पानी में से निकाल लीजिए, फिर से फ्रेश हो जाएंगे। ये बहुत सुंदर फूल है। अलग अलग तरीके के मैंने 3-4 टाइप इसके बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सूखा हुआ फूल है, लेकिन अगर इसको मैं पानी में डिप करूंगी तो अभी ही ये फ्रेश हो जाएगा। ये देखिए, हम आपको ये फ्लावर भी बताना सिखाएंगे बनाना। सॉरी, ये भी बिल्कुल इजी तरीके से बन गया है वो ये फ्लावर। देखिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसको इस तरह से खींच के निकाल देते हैं और फेंक देते हैं। जब हम कुछ चीज बनाते हैं, कोई व्यंजन बनाते हैं, तो इसे निकाल कर हम इस तरह से फेंक देते हैं। लेकिन अब क्या करना है, इसको सिर्फ आप देखिए, मेरी ये जो क्रिएशन है इसमें आपको कोई ज़्यादा खर्चे की तो ज़रूरत है ही नहीं, और कोई चीज़ आपको बाजार से लाना भी नहीं पड़ेगा। जो घर में है उसे ही रिसाइकिल करना है, उल्टा इससे पोल्यूशन कम होने वाला है। देखिए ये जो चीज़ है, ये जो हमने निकाले हैं पत्ते, तो इन पत्तों को हम सिर्फ अरेंज करेंगे और ये रबर बैंड है, इससे हम इस फूल को बना लेंगे। देखिए क्या करना है इस फ्लावर के लिए, मैं ये सिखा रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, ये जो हमने पत्ते निकाले, ये जो कर्व्स है पोर्शन है, इसको अंदर लेना है और इसके सामने दूसरा पेटल इस तरह से। अगर आप ऐसे भी इसको बांध दे धागे से तो ये कली बन जाएगी। और ऐसे 7-8 कलियां बना लीजिए एक बुके के लिए। इसको मैं बांध रही हूँ धागे से। इस तरह से आप इस पे एक डंडी लगाकर कलियां बना लीजिए पहले। और बड़ा फूल अगर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पहले वाला राउंड आप इस तरह से कर लीजिए। ये कर्व पोर्शन अंदर लेना है इस तरह से।
और सेकंड राउंड जो है उसमें ये जो कर्ड पोर्शन है ये बाहर से आएगा, इस तरह से आएगा। तो आप ये सेकंड राउंड बना लीजिए। मैं सिर्फ इसको पकड़ रही हूँ, इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। ये देखिए प्रकृति की देन है ये, इतनी सुंदर चीजें। आप इस भुट्टे को देख रहे हैं, इसको कवर दिया है नेचर ने, और वो भी एक दो नहीं, कई तरह के पत्ते उसने दिए हैं। देखिए इसको सिर्फ मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ और मैं इसे रबर बैंड से टाई कर दूंगी, तो बस अपना फ्लावर तैयार हो जाएगा। अगर बच्चों को मकई के खेत में लिया जाए और उनको ये भुट्टे दे दी जाए तो कितने मज़े से वो फ्लावर बनाएंगे, है ना। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, सुंदर एक्टिविटी है, जिसमें सिर्फ आपको समय देना है। तो देखिए ये हम रबर बैंड इसको लगा रही हूँ और ये फ्लावर तैयार हो जाएगा। आप जब बनाने लगोगे तो अपनी इमेजिनेशन से और भी सुंदर सुंदर फूल बना सकते हैं। मकई के छिलके से मैंने 5-6 टाइप के फूल बनाए हैं, लेकिन अभी इतना ही ठीक है। देख लीजिए आप, ये नेचुरल कलर भी अच्छा लग रहा है। इसे हम बुके में लगा सकते हैं। बुके के लिए ये मैंने तुरई का बनाया हुआ है। तुरई जो होती है सब्जी, वो सूख गई थी, उसका छिलका निकाल कर अंदर की जाली यूज़ किया है और उसको उसी बीजों से डेकोरेट किया है। और इसके अंदर अगर मैं ये फूल रख देती हूँ और कुछ पत्तियाँ रख देती हूँ तो ये मेरा बुके बन जाएगा तैयार। ये मैंने पत्तियाँ ली है, इसको मैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें पहले से ही छेद है, ये जो तुरई है इसमें पहले से ही छेद है, तो ये मेरा बुके बन जाता है। देखिए कितने कम समय में ये बुके बन गए और बहुत बढ़िया लग रहा है ना। अब मैं दिखाऊंगी कि वो जो हमने कलर में डिप किया था वो कैसा लग रहा है। समय कम होने के कारण हमने 1 मिनट में निकाल लिया इसको, इसलिए ये फेंट है, लेकिन आप घर पर बना सकते हो। और डार्क कलर करके रात भर अगर पानी में रखा तो बहुत सुंदर कलर आएगा। वैलेंटाइन डे के वक्त अगर ऐसे फूल बनाकर मार्केट में लाए जाएंगे तो ज़रूर ये लोग इनको खरीदेंगे, क्योंकि तब रेड रोजेस की शॉर्टेज हो जाती है। तो ऐसा सब कुछ अच्छी तरह से बन सकता है। ये चीज़ें हम घर पर ही बना सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। दिस इज द मेन थिंग ऑफ दिस एग्जीबिशन। नाउ अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि क्या है, हम क्या सिखा सकते हैं बहुत कम समय में। अब मैं आपको वैजयंती माला बनाना सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, जो मैंने पहन रखी है। ये वैजयंती मोती खेतों में मिलते हैं घास पर, तो इसमें छेद भी होता है। देखिए ये जो बारीक मोती आपको दिख रहे हैं गोल्डन, इसको 0 नंबर के मोती बोलते हैं। और इसमें जो कैप है, ये जो चीज़ है, इसको कैप बोलते हैं। तो आपको दुकान से आसानी से ये ज्वेलरी की दुकान में मिल जाएगा। तो मैंने एक वैजयंती मोती लिया है, एक ब्लू, एक कैप और फिर वाइट वाला मोती। इस तरह से ये माला आप आसानी से बना सकते हैं, जो मैंने पहन रखी है। अब जब हम माला बना लेते हैं तो ये बैंगल बेस मिलते हैं, आपको बेस मिल जाएगा, इसमें छेद होता है। जब आप ये माला बना लेते हो तो आप इसके ऊपर इस तरह से नाप लीजिए और इसको काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पर गांठ लगाकर सुई धागे से हम इसको सिल सकते हैं। आपको डिटेल में सीखना है, देखना है, तो आप मेरा YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करके देख सकते हो। ये चूड़ी इसी तरह से तैयार हो गई है। पहले माला बना लीजिए, इसके ऊपर फिक्स कीजिए और छेद में से सुई धागा निकालकर इस तरह से इसको सिल सकते हैं आप। इसको यहाँ से सुई निकालकर इधर से आप अंदर डाल दीजिए और ये चूड़ी तैयार हो जाएगी।
तो इस तरह से बिल्कुल आसान है ये चीज़ें बनाना और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, क्योंकि ये खेतों में मिल रहे हैं मोती और वो भी सच्चे मोती है, ये कभी भी खराब नहीं होंगे। तो इसके बहुत सारे डिजाइन हमने बनाए हैं, आप देख सकेंगे YouTube चैनल पर। कॉलेज GS कॉलेज के वेबसाइट पर भी हम ये वीडियो अपलोड करने वाले हैं, आप बाद में इसे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shraddha. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. On the behalf of GS College, Women Empowerment and Entrepreneurship Development Cell, and also with Nisarga Sanstha Khamgaon, I present here as a representative for vote of thanks. Today, my words are not enough to express the gratitude of our Honorable Dr. Subhash Ji Bobde sir, President of today's program, who graced us with his thought-provoking address, set a perfect platform for our college, also gives the blessing and support to us for organizing this wonderful event. So, thank you sir. I would like to give a special thanks to our Honorable Dr. Murlidhar Chandekar sir, Vice Chancellor Sant Gadge Baba Amravati University Amravati, for giving his valuable time to us, and we feel very happy today. So thank you sir, thank you very much. After that, a big thank you to our special and beautiful chief guest, Honorable Harshal Jagdale ma'am from USA and Honorable Professor Monica Umak ma'am from India, for inspiring the motivational talk and who lightened the lamp for the women not only in India but also in the abroad countries. And we all are inspired by your great words. Thank you ma'am. So from the bottom of our heart, we say thank you very much ma'am. Yes, now a big thank you to a very special, very different and a creative, energetic personality, the mentor and trainer of our today's program, Honorable Neeta Bobde ma'am, who always teach us some new arts and always gives their valuable guidance to us. So really, from the bottom of my heart, thank you very much ma'am. Finally, I would like to take this opportunity to place on record our heartily thanks to smiley personality, our respected principal Dr. D.S. Tavankar sir, for the perfect logistic support and the guidance he has extended to all of us as this function. Also their enormous cooperation in the organization of this event. Thank you sir. Last but not least, thanks to all speakers and everyone who has been part of organizing the program directly or indirectly, including the beautiful audience gathered here to attend the program. So thank you all.